Good evening, everybody. So, Bache, today we'll be starting up with mirror formula numericals. Unfortunately, on Monday, due to internet connectivity problems, we were not able to go ahead with our class. Hopefully, today we'll be able to do that. Okay. So, let's keep our fingers crossed. Everything is all right today. So, we'll be able to finish up some of the important questions from mirror formula. So, Bache, before we start up with numericals, I am just going to again write down the mirror formula for you quickly so that it gives you an idea how are we going to use the formula and how we'll solve the numericals. So, Bache, the mirror formula is 1 by f. How do we write it? It is 1 by f. 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. This is the mirror formula where f is focal length, v is image distance, u is object distance. और बचे अकॉर्डिंग टू दी कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग हम इनमें सिंबल्स लगाएंगे. एंड बचे मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस v बाय u ओवर hi over h naught. hi is height of image, h naught is height of object. तो बच्चे ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे while we solve numericals based on mirror formula, or when we have to take out magnification, we will be using these two formulas. All right, chalo. So बच्चे I'll just pick up the first numerical. Okay, first numerical जो है वो हम pick up करेंगे. All right, okay, let me just pick up the second question. I'll be picking up questions randomly. बच्चे मैं randomly questions को pick करूंगा. All right, and we'll try to solve them. After the class is over, I'll be also sharing this file from which I am picking the questions. तो बच्चे इसके अंदर करीब 40 questions हैं. So if you are able to solve all of them or go about them one by one, you'll be very confident of solving any type of mirror formula numerical that might come to you in board exams or class 10th. अगर आप ये 40 questions कर लोगे तो आप जो है बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे and you will not be confused whatsoever. Okay, so बच्चे will try to solve the first question. बच्चे this first question is saying you have an object of height 4 centimeter which is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. तो बच्चे what we do, we read the question and we try to put in the values. Whatever we have in the question, we'll try to put in so that we come to know how are we going to use the formula. Right, Anisha, I know about the board new pattern. Okay, but syllabus and everything will become clear by end of July. Don't worry, we'll be incorporating all the new guidelines that have been given to us. I think most of them we are following. हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले रहे हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम अब शुरू करने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो अब बोर्ड की गाइडलाइंस आई हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. सो लेट्स वेट. व्हाटएवर गाइडलाइंस वी विल रिसीव, विल बी स्टडिंग अकॉर्डिंगली. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. I'll be sharing sample papers with you also. We'll be doing tests also. Okay, हम पूरा वही पैटर्न फॉलो करेंगे. Okay, चलो. So बच्चे, what is given here? We have an object that has height of 4 centimeter. So बच्चे, height of object is 4 centimeter. और बच्चे height of object को हमेशा प्लस में लिखना है because it is always placed upright. It is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror. So बच्चे object distance is given as 6 centimeter. और बच्चे object distance को हमेशा negative में लिखना है, तो I will put it as minus 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. अब बच्चे concave mirror has a real focus. तो बच्चे f की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? विल टेक इट एज नेगेटिव. f की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, -12, बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव इन कॉनकेव मिरर. हाँ जी आराम. I want to give the answer. You want to give the answer? Yes, sir. Okay, you have already solved. Okay, Yes, Aram, sir. just wait for a while.
लेट अस सॉल्व फॉर अदर्स, देन आई अगर मेरा आंसर आपका जो आंसर है तब लेंगे जब एक बार हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लें. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल गिव यू अ चांस. ऑलराइट. Alright. Okay. So, bache, you have object which has height of 4 centimeter. It is placed at a distance of 6 centimeter. Focal length is 12. Find position, nature, and size of the image. So, bache, you have to find V, which is the image distance. You have to find nature, real or virtual. Size भी find करना है image का. So, height of image भी find करेंगे हम. All right. These are the things we have to solve in this question. So, bache, the mirror formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. बच्चे what you can do, you can put the values or you can rearrange. अगर आप चाहो तो इसको rearrange भी कर सकते हो. ठीक है, रीअरेंज करने से थोड़ी कंफ्यूजन कम होती है. तो मुझे v के लिए सॉल्व करना है, u को मैं उस साइड ले जाऊंगा. सो बचे 1 by v इज इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u. ओके, दिस इज द फॉर्मूला आफ्टर रीअरेंजमेंट. अब बचे वैल्यूज पुट करिए. 1 by v is equal to, what is the value of f? बचे it is in negative, so it would be minus 1 by 12 माइनस, और बचे u की वैल्यू भी नेगेटिव में है, सो इट वुड बी माइनस 1 by 6. तो बचे इसका एलसीएम क्या आएगा? व्हाट वुड बी इट्स एलसीएम? आप इसको सॉल्व करिए. 1 by v इज इक्वल टू, एलसीएम वुड बी 12 माइनस, और बचे माइनस माइनस वुड बी प्लस 2. ऑलराइट. तो बचे v की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इंप्लाइज v is equal to, v की वैल्यू क्या आएगी? It would be 12. Okay, just a moment, हमने कुछ गड़बड़ की है? नहीं, बिल्कुल सही है. तो v की वैल्यू आई है बच्चे 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू. अरहाम, is this your answer? Yes, sir. Okay. बच्चे अरहाम, कैन यू क्रॉस चेक कि आपकी v की वैल्यू प्लस 12 सेंटीमीटर आई है? पर Yes, हमने sir. सीखा था कॉनकेव मिरर में तो रियल इमेजेस बनती हैं, तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी, पर यहाँ तो प्लस 12 आई है. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों हुआ? कैन यू कोरिलेट? रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या ये वैल्यू सही है? बताओ. देखो, u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 12. तो बच्चे दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. तो बच्चे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है. तो बच्चे v की वैल्यू क्या आई है? यहाँ प्लस में आई है, सो दैट इज करेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम द वैल्यू इज करेक्ट. ओके. हाँ जी अनीशा, बोलो. ओके ओके, आई थिंक आप आंसर बताना चाह रहे थे. ऑल राइट बच्चे, आई थिंक आप लोगों को भी लॉजिक समझ आया होगा हम रे डायग्राम कैसे यूज कर रहे हैं. अब बच्चे नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज. ओके, ऑल राइट. हाइट ऑफ इमेज हम फाइंड कर सकते हैं. आई थिंक पहले हम मैग्निफिकेशन कर लेते हैं, दैट वुड बी इजियर. उसके बाद हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी. मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू. तो v की वैल्यू 12 है, तो बच्चे उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस 12. और u की वैल्यू बच्चे नेगेटिव में है, माइनस 6. तो बच्चे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस 2. मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है प्लस 2. तो बच्चे दैट मीन्स इमेज इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बच्चे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? देखो, ऑब्जेक्ट हाइट इज 4 सेंटीमीटर. हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो दिस मींस हाइट ऑफ इमेज वुड बी इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल होगा? मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इज 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4. सो हाइट ऑफ इमेज वुड बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अगर आप बच्चे सिंपल लॉजिक भी यूज करो, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डबल करना है पॉजिटिव में, सो इट वुड बी 8 सेंटीमीटर. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इट वाज अ इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था.
You just have to follow the Cartesian signs, use the formula and solve the question. Okay, चलो, all right. अब चलते हैं बच्चे next question पे. We'll move on to the next question. Okay. Okay, let's pick up a question. Okay, concave. Okay. Let's do a convex mirror question. Question number 8. All right. एक कॉन्केव मिरर का हो गया है, एक कॉन्वेक्स मिरर का ट्राई करते हैं. All right, convex mirror. Okay. Acha, this is your question. A convex mirror used on an automobile has a radius of curvature of 2 meters. If a car is located at 4 meters from the mirror, find position, nature and size of the image. Okay. So our answer will be, I have been given radius of curvature. So radius of curvature is 2 meters. So what would be focal length? Focal length would be 1 meter. Will it be in plus or minus? It would be in plus. क्योंकि बच्चे ये convex mirror है. Convex mirror is diverging mirror, so it will have value in plus. So focal length is plus 1 meter. Car is located 4 meters from the mirror. So बच्चे object distance is -4. Object distance is -4 meter. Object distance को हमेशा minus में लेंगे बच्चे. Then you have to find position, nature and size of the image. बच्चे position find करनी है, V find करना है, size of the image find करनी है, so height of image find करेंगे, and you have to find nature. Nature तो पता ही है बच्चे, virtual image बनेगी. All right, चलो let's put the values. So बच्चे 1 by V find करना है, so 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. मैंने बच्चे पहले ही उसको रीअरेंज कर दिया है. ये सेम फॉर्मूला हमने रीअरेंज करके ऊपर भी बनाया था. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. मैंने रीअरेंज करके सीधा लिख दिया. 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. Let's put the values. Values put करते हैं. Okay, so 1 by V मुझे फाइंड करना है. बच्चे फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, so it would be 1 minus, और U की वैल्यू क्या है बच्चे? It is -1/4. तो बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, LCM क्या आएगा? LCM would be 4. LCM क्या आएगा? 4. Okay, so it will be 4. इधर भी 4 आ जाएगा, और बच्चे माइनस माइनस इज +1. Okay, so this implies V is equal to 4/5. So it is equal to 0.8 meters. If I'm not wrong, it will be 0.8 meters. All right, Anisha, Akriti, you are absolutely right. Okay, you will be getting answer as 0.8 meter. बच्चे पॉजिटिव में ही आंसर आना है, because it is a virtual image. पॉजिटिव में आंसर आएगा 0.8 मीटर. All right, correct. अब बच्चे देखो और क्या फाइंड करना है. You have to find height of the image. अब बच्चे प्रॉब्लम इज हाइट ऑफ द इमेज हम कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, तो सबसे पहले आप मैग्निफिकेशन निकालो. ट्राई टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन फर्स्ट. तो बच्चे मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -V/U. तो बच्चे दिस मींस -V की वैल्यू हो जाएगी -0.8, और U की वैल्यू भी नेगेटिव में लेनी है. उसकी वैल्यू है मेरे पास इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 4. ऑल राइट, 4. तो बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? इट इज 8/40. तो मैग्निफिकेशन वैल्यू वुड बी, इट वुड बी इन +0.2. ओके, इट वुड बी 0.2. मैग्निफिकेशन जो है बच्चे 0.2 है. ओके, मैग्निफिकेशन इज 0.2. तो बच्चे दैट सिंपली मीन्स अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हम 1 मीटर मान ले, तो हमारी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी 0.2 मीटर होगी. ओके, सो दैट सिंपली मीन्स अगर हम लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी 1 मीटर, तो बच्चे दिस मीन्स हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी? इट वुड बी 0.2 मीटर. क्योंकि बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं
कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर है तो मेरा हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर. अदरवाइज मैग्निफिकेशन से ही हम करेंगे 0.2. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 1/5 height of object. Okay, and it is a virtual image. ठीक है बच्चे, I hope this question is also clear. Easy question था, ज्यादा मुश्किल नहीं था. Let's move on. चलो अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. All right. Okay. All right, let's try to solve this question. A converging mirror, जहां आपको कन्वर्जिंग मिरर बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं. तो बच्चे आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां आपको बोला जाएगा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मिरर है अकॉर्डिंग टू नेचर. तो बच्चे यहां बोला गया है अ कन्वर्जिंग मिरर. तो बच्चे व्हाट इज अ कन्वर्जिंग मिरर? अ कन्वर्जिंग मिरर इज कॉनकेव मिरर. All right, converging mirror is concave. That is absolutely right. तो बच्चे यहां आपको दिया गया है it forms a real image of height 6 centimeter. Object height is 2 centimeter and it is placed 20 centimeter away from the mirror. All right. तो बच्चे यहां object distance दिया हुआ है. Object distance is -20 centimeter. All right. Okay. Height of image, it is a real image, so height of image is -6 centimeter. Height of image is -6 centimeter. All right. और बच्चे जो यहाँ height of object दिया हुआ है, height of object is 2 centimeter. तो बच्चे इसको प्लस में लिखेंगे, height of object is 2 centimeter. All right. अब आपको फाइंड करना है बच्चे image distance v. Okay, and you have to find focal length. अब बच्चे how will we solve this question? आपका जो v है वो भी unknown है, f है वो भी unknown है. How are we going to solve this question? Okay. हाँ जी अनीशा. सर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -b अपॉन u. तो सर हमें सर b मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम सब मिरर फॉर्मूला लगा के f भी निकाल देंगे. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे मिरर फॉर्मूला में जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट. मिरर फॉर्मूला में आपके दो वेरिएबल्स अननोन हो गए. तो बच्चे आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v ओवर u. ओके, हम ये मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करके कोशिश करेंगे v निकालने, क्योंकि बच्चे बाकी तीन वैल्यूज हमें पता है, v निकल जाएगा, फिर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलराइट. तो बच्चे यहाँ हाइट ऑफ इमेज आपको दी हुई है. हाइट ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ इमेज इज -6. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 -v. और बच्चे u की वैल्यू क्या दी हुई है? u की वैल्यू भी नेगेटिव में है, -20. तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस मीन्स -v is equal to 20 into 6 plus, so it would be 120. Okay, -20 into -6. Okay, so it would be 120 divided by 2. So that means v is equal to -60 centimeter. अच्छा, v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर. ओके, ऑलराइट. क्या बच्चे ये रे डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू सही है? यस, क्योंकि बच्चे देखो रियल इमेज बनी है, तो रियल इमेज बनी है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए. ऑलराइट, सो इमेज डिस्टेंस इज -60 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो ये वैल्यू करेक्ट आ गई. अब बच्चे लेट्स ट्राई टू सॉल्व फॉर फोकल लेंथ. तो बच्चे फोकल लेंथ कैसे आएगा? 1/f is equal to 1/v plus 1/u. So let's try to put the values. मुझे v की वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू मुझे पता है. तो बच्चे this means 1/f is equal to
v की वैल्यू है बच्चे -60, सो -60, ऑलराइट, और प्लस है यहाँ बच्चे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, सो इट वुड बी 1/20। अब बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो एलसीएम है दैट वुड बी इक्वल टू 60, एलसीएम वुड बी इक्वल टू 60, तो 60 ऊपर आ गया और नीचे क्या वैल्यू आएगी, ओके, इट वुड बी -1 -3, ओके। तो बच्चे f की वैल्यू क्या है, दिस मीन्स f इज इक्वल टू -15 centimeter. All right, I hope you have got the answer. Okay, Archisha, your answer is correct. Arham, your answer is correct. तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है, f is equal to -15। बच्चे ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, it is our converging mirror, it is a concave mirror, so we should get focal length in negative। हमारा जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में ही आना चाहिए। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं एक और कोई क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बच्चे, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Please read the question carefully. A object is kept in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Okay, तो बच्चे यहाँ concave mirror है, focal length आपको दिया हुआ है, focal length is 20 centimeter, तो बच्चे f would be equal to -20. All right, image formed is 3 times the size of object. Calculate 2 possible distances of object from the mirror. बच्चे you have to remember concave mirror can form virtual image which is magnified and it can also produce real image which is magnified. तो बच्चे आपको दोनों possibility के लिए क्या करना है, दोनों possibility के लिए object distance निकालनी है। ओके, जहां एक बार आपको magnification मिलेगी +3 और एक बार आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलेगी -3। अब बच्चे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चे इसको 2 तरीके से सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व इट इन 2 ways। ओके अनेशा, यू रेज्ड योर हैंड। हाँ जी अनेशा बोलो। सर हम ऐसे सर एज अ वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं सर, जैसे कि हम जो मैग्निफिकेशन है हमारा वो 3 है, तो हम उसको इक्वल रख देंगे -v/u, और फिर हम सर v की वैल्यू निकाल देंगे सर -3u, तो फिर हम इसको सर पूरे तो v की जगह हम -3u डाल के पूरे वेरिएबल के साथ इसे कर सकते हैं सॉल्व। ओके ऑलराइट, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि एक बार वर्चुअल का केस लें, एक बार रियल का केस लेके वेरिएबल डाल के इक्वेशन सॉल्व करें। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही करना है क्योंकि बच्चे दोनों पॉसिबल डिस्टेंसेस निकालनी है। तो बच्चे हम फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं। व्हेन यू गेट अ रियल इमेज, अगर बच्चे आपको रियल इमेज मिल रही है, इन केस यू गेट अ रियल इमेज, तो बच्चे मैग्निफिकेशन वैल्यू वुड बी इक्वल टू -3, क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 लेंगे। ऑलराइट, अब बच्चे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस सिंपली मींस हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, सो दिस मींस -3 इज इक्वल टू -v/u। तो बच्चे u को अननोन मान लेते हैं, ओके, या v को अननोन मान लेते हैं बच्चे। लेट्स पुट v, ओके ऑलराइट, हमें तो इजी तरीके से सॉल्व करना है, सो आई विल टेक -v इज इक्वल टू -3u, ओके, दैट मींस v इज इक्वल टू 3u। ओके, तो बच्चे ये मेरी फर्स्ट मेरा वैल्यू बन गई। अब अगर वर्चुअल इमेज है, अगर बच्चे वर्चुअल इमेज है, ऑलराइट, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, मैग्निफिकेशन वुड बी +3, सो दिस विल बी यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। तो दिस सिंपली मींस 3 इज इक्वल टू -v/u और v इज इक्वल टू -3u। ये बच्चे वर्चुअल इमेज के केस में बन गया। ओके, यहां तक क्लियर है, समझ आ गया मैंने क्या किया है, मैंने v को u के साथ रिलेट करके एक वैल्यू बना ली।
अगर रियल इमेज है तो v की वैल्यू होगी 3u, अगर वर्चुअल इमेज है तो v की वैल्यू होगी -3u। अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना, पुट दी वैल्यूज इन फॉर्मूला। अपनी जो वैल्यूज हैं उनको फॉर्मूला में डालिए। सबसे पहले रियल इमेज के लिए सॉल्व करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बच्चे लेट्स पुट दी वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चे फोकल लेंथ की वैल्यू आपको दी है -20, सो -20। और बच्चे v की वैल्यू क्या है 3u, सो इट वुड बी 1/3u। ऑलराइट, 1/3u। और बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप u ही लोगे प्लस 1/u। ऑलराइट, अब बच्चे सॉल्व दिस इक्वेशन। अब बच्चे एक चीज ये याद रखिए, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता तो अभी आप प्लस माइनस मत करिए, अपने आप वैल्यू सही आएगा। ओके, अपने आप वैल्यू सही आएगी। तो बच्चे दिस मीन्स अगर मैं इसको एलसीएम लू, बच्चे एलसीएम कितना आएगा 3u। ओके, 3u वैल्यू आएगी, तो दिस वुड बी ओके 1 plus 3। ओके, सो दिस सिंपली मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट वुड बी ओके u इज इक्वल टू ओके -u इज इक्वल टू ऑल राइट 4 into 20, so 20 into 4/3। ओके, मैंने सही किया है, u पर चला गया, 20 इधर गया, 4। ओके, ऑल राइट। तो बच्चे u की वैल्यू आएगी, u विल बी इक्वल टू -80/3 सेंटीमीटर। ओके, u की वैल्यू देखो नेगेटिव में आ गई, दैट इज -80/3। बच्चे यहाँ v भी अननोन है, u भी अननोन है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, तो अभी प्लस माइनस मत लगाइए, वो अपने आप वैल्यू सही आएगी। तो u की वैल्यू आ गई बच्चे -80/3। दिस इज फॉर रियल इमेज। अब बच्चे सॉल्व करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑलराइट, f की वैल्यू बच्चे -20, 1/20। v की वैल्यू मैंने लिखी है -3u, सो इट वुड बी 1/3u प्लस u की वैल्यू बच्चे मुझे फाइंड करनी है तो इट वुड बी 1u। सब कुछ वैसे ही सॉल्व हो रहा है, इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। ऑलराइट, तो बच्चे इट वुड बी ओके -1/20। if I take out the LCM it would be 3u and it would be equal to -1 plus 3। ऑलराइट, तो बच्चे इफ आई सॉल्व दिस आउट, अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो बच्चे दिस वुड बी इक्वल टू -u इज इक्वल टू -1 plus 3 is +2, तो it would be equal to बच्चे 20 into 2/3। दैट मीन्स u की वैल्यू आ गई बच्चे -40/3 सेंटीमीटर। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्चुअल इमेज के केस में आया है -40/3। ऑलराइट, और बच्चे रियल इमेज के केस में आया है -80/3। ऑलराइट, प्लीज क्रॉस चेक एवरीबडी। अब हम रे डायग्राम्स के हिसाब से इसको चेक करते हैं। बच्चे मेरा पहला आया है 80/3, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 26.6। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज 20। तो बच्चे इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू विल गेट अ रियल मैग्निफाइड इमेज। तो बच्चे पहला मेरा आंसर बिल्कुल सही है। वर्चुअल इमेज के केस में आया बच्चे 40/3, सो दैट इज अराउंड 13.3। ओके, तो फोकल लेंथ और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट, 13.3 है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिटवीन focus and pole, so you will get a virtual magnified image। okay, तो बच्चे हमने दोनों केस के लिए सॉल्व किया है, हमने दोनों केस के लिए यहां सॉल्व किया है। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, सबको समझ आ गया कैसे किया है? ऑल राइट, ठीक है, वेरी गुड। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू पिक अप सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दी क्वेश्चन बैंक। देखते हैं इसमें और क्वेश्चंस। ओके,
ओके, all right, let's pick up this question. All right, okay, but this is the question. Find position, size and nature of the image formed by a spherical mirror from the following data. U is -20, F is -15, height of object is 1 centimeter. Okay, तो बच्चे विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस? फोकल लेंथ -15 दिया है, ये किस टाइप का मिरर है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? ओके, इट इज अ कॉनकेव मिरर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव दिया है, हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है? इट इज अ कॉनकेव मिरर, एब्सोल्युटली राइट। तो बच्चे हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, u is -20, so it is a u is -20, कॉनकेव मिरर है क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में है, तो इट इज -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बच्चे गिवन एज 1 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर। ओके, तो पोजीशन फाइंड करनी है v, हाइट फाइंड करना है इमेज का, एंड नेचर तो बच्चे वर्चुअल इमेज बनेगी या मैग्निफाइड इमेज, वो हम लिख सकते हैं। ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो बच्चे आई विल बी यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, I have to find v, so 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u। बच्चे रीअरेंज करके लिख लिया करो पहले, तो आपकी जो गलतियां हैं बहुत कम होंगी। ऑलराइट, सो 1 by u। ऑलराइट, लेट्स पुट दी वैल्यूज। तो बच्चे मुझे यहाँ जो वैल्यूज दी हैं, 1 by v फाइंड करना है, f की वैल्यू है -15, so it would be -1 by 15, and minus here also object is -1 by 20. All right, अब बच्चे let's try to solve this question. So 1 by v would be equal to, LCM is 20 and 15 का LCM क्या आएगा? It would be 60 if I am not wrong. LCM would be 60. Okay, LCM is 60 centimeter, 60 आ गया। All right, अब बचे 15 4 माइनस माइनस प्लस 23। ओके, सो बचे इट इज v इज इक्वल टू 60/7। अब बचे v की वैल्यू आई है 60/7 सेंटीमीटर। क्या बचे ये आंसर करेक्ट है? v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। कैन यू गेट अ वैल्यू विच इज पॉजिटिव? इज दिस आंसर करेक्ट? क्या हमने गलत करा है कि सही किया है? कुछ तो गड़बड़ हो गई। कैसे पता लगा गड़बड़ हुई है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 है, फोकल लेंथ -15 है। ऑलराइट, मैंने क्या गलती कर दी? माइनस माइनस प्लस। ऑलराइट, यहां भी माइनस था, सॉरी। ओके, मैंने ये वाला माइनस मिस कर दिया। -4 + 3, सो इट वुड बी -60। मैंने बच्चे ये वाला माइनस मिस कर दिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला, तो इट वुड बी, सॉरी, फोकल लेंथ वाला, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अरहम, योर आंसर इज -1 by 15। अरहम, जस्ट चेक योर आंसर। बच्चे आई एम गेटिंग v as -60। ओके, all right, okay, Arham was telling my mistake, all right, got it। Arham, thank you so much। मैंने वो जो f वाला माइनस है वो मिस कर दिया था, पर देखो क्योंकि मैंने रे डायग्राम्स को अच्छी तरह समझा हुआ है, तो मैंने अपनी गलती रियलाइज कर ली। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ रे डायग्राम्स। अगर आपको रे डायग्राम अच्छी तरह आते हैं, तो अगर आप कोई गलती करोगे ना मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने हिसाब लगाया कि मेरा ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ के आगे था, तो v तो पॉजिटिव आना ही नहीं चाहिए, तो व्हेन आई चेक मुझे पता लग गया कि f की वैल्यू मैंने नेगेटिव नहीं ली है। ओके, तो अगर हम रे डायग्राम्स अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो बच्चे मिरर फॉर्मूला में हमारी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब बच्चे हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है। ओके, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं।
I will use this formula. Height of image over height of object is equal to minus v over u. Let's put the values. Okay, height of object is 1 centimeter. तो बच्चे this would be height of image is equal to height of object तो 1 हो गया बच्चे, वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है. तो it is minus 60 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बचे हमारा कितना है -20 बचे. हमेशा साइन का ध्यान रखना है, साइन की ही गड़बड़ होती है. तो बचे हाइट ऑफ इमेज वुड बी माइनस माइनस अंदर कैंसिल हो जाएगा. तो हाइट ऑफ इमेज वुड बी ओके, इट वुड बी -3 सेंटीमीटर. बचे जस्ट चेक दी आंसर. ओके, हाइट ऑफ इमेज वुड बी -3 सेंटीमीटर. तो मैग्निफिकेशन है हमारी मैग्निफिकेशन है -3. तो बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में है तो दैट मींस इमेज फॉर्म इज रियल. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस इमेज फॉर्म इज वर्चुअल. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. सो हाइट ऑफ इमेज इज -3, इट इज अ रियल इमेज एंड इट इज इन्वर्टेड. ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी डन है. चलो लेट्स पिक अप सम मोर क्वेश्चंस. एक आधा और क्वेश्चन करके देखते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा. एंड बचे विल बी थ्रू मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके ओके बच्चे, इसके अंदर कुछ मायोपिया वाले भी हैं. मायोपिया वाला क्वेश्चन आ गया है इसके अंदर बच्चे. दैट विल बी कवर्ड इन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ओके अनेशा सी, हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर, पर वो माइनस में आई है. माइनस में आनी चाहिए क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा वो रियल इन्वर्टेड इमेज है. ठीक है, so you will write height of image is 3 centimeter and it is real. Is that clear, Anisha? बच्चे जब हम सॉल्व करेंगे ना कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कोरिलेट करना चाहिए प्लस माइनस में. अगर आप ऐसे लिखते हो रियल इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट आंसर, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. पर अगर बच्चे सिर्फ ये लिखा है हाइट ऑफ इमेज इज -3, क्योंकि आपने नहीं लिखा कि रियल है कि वर्चुअल है, तो बच्चे फिर तो माइनस डालना ही पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा. ओके, इस तरीके से समझना है. ऑल राइट, चलो बच्चे एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल बी थ्रू मिरर फॉर्मूला. फिर ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक एक करके जरूर सॉल्व करके देखिएगा. ओके चलो एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन करते हैं. कॉनकेव के हमने ज्यादा किए हैं क्वेश्चंस. ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके ओके ऑल राइट. अब बच्चे एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. तो बच्चे यहां हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -20 सेंटीमीटर. इमेज इज फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो v की वैल्यू है बच्चे 12 सेंटीमीटर. पॉजिटिव में ही लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे क्योंकि बच्चे वर्चुअल इमेज है. ऑलराइट, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. बच्चे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो बच्चे यहां हम वैल्यू डालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ऑलराइट, 1/v प्लस 1/u. ऑलराइट बच्चे, व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या आंसर आएगा? v की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, सो दैट इज 12 प्लस -1/20. अगर बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे इट वुड बी इक्वल टू ओके 30 सेंटीमीटर. पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाएगा. तो बच्चे फोकस इज इक्वल टू 12 और 20 का बच्चे एलसीएम क्या आएगा? 60. ओके, इट शुड बी 60 एंड 1
Okay, 5 plus minus 3. All right. So this simply means it is 60 by 2. That's equal to 30 centimeter. All right. Okay. तो बच्चे ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड। तो बच्चे इस तरीके से हमें मिरर फॉर्मूला को यूज करके कार्टेशियन साइन को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, ऑल राइट। आई थिंक बच्चे रेस्ट तो अब आप मैनेज कर लोगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल वाइंड अप दिस सेशन। बच्चे हमारे मिरर फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो खत्म है, बाकी ये आप खुद घर पे ट्राई करके देखेंगे। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। प्लीज गो थ्रू एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, ऑल राइट, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ऑल राइट, chalo, let's try to solve this question. An object is placed at 12 centimeter from a concave mirror. Okay, object is placed at 12 centimeter, so object is minus 12. All right, and bache image formed is real and 4 times larger than the object. So bache magnification is minus 4. Magnification is minus 4. All right, you have to calculate distance of image from the mirror. बच्चे v की वैल्यू फाइंड करनी है। कैन वी फाइंड दिस? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, फाइंड फोकल लेंथ ऑल्सो। फोकल लेंथ भी फाइंड करिए। ओके, फोकल लेंथ भी फाइंड करिए। तो बच्चे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू। तो बच्चे v की वैल्यू निकालनी है, u तो पता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अब। ओके, सो इट इज -4, मैग्निफिकेशन वैल्यू इज -4 और u की वैल्यू है -12, सो इट इज ओके इनटू -12। ओके, लेट मी नॉट राइट इट लाइक दिस, बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में। ओके, -12 ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू -v। लेट्स सॉल्व दिस। तो माइनस माइनस इज प्लस, सो v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। तो बच्चे आपका आंसर आना चाहिए -48 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चे f की वैल्यू फाइंड करो। 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by v प्लस 1 by u। बच्चे वैल्यूज पुट करिए, u की वैल्यू -12 है, सो 1 by f, ओके, 1 by f इज इक्वल टू, v की वैल्यू है बच्चे -48, सो 1 by 48। ओके, और बच्चे u की वैल्यू नेगेटिव में थी, सो इट वुड बी -1 by 12। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, u की वैल्यू माइनस में थी, -12। तो बच्चे एलसीएम इज 48 और 24। एलसीएम कितना लेंगे? 48 लेंगे। ओके, f की वैल्यू ले ली हमने। ओके, 48 ले लेते हैं एलसीएम। इट वुड बी 48 ओके, ओके, -1 -4। ऑल राइट, तो बच्चे फोकल लेंथ कितना आएगा बताओ? फोकल लेंथ वुड बी इक्वल टू -48 over 5 सेंटीमीटर। -48 by 5 ही आ रहा है। ओके, -9.6। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो बच्चे ये आपके मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स हो गए। आकृति, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चंस फ्रॉम रे डायग्राम्स। आकृति, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? रे डायग्राम के क्वेश्चन मतलब कि डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग इमेजेस कैसे बनेंगी?
आई एम नॉट गेटिंग योर व्हाट यू वांट टू से. आकृति. ओके. बजे जो ये मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा ना, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रे डायग्राम्स के साथ भी रिलेट किए होंगे. ओके. तो आप जब उन्हें करके देखोगे तो अब आपको मुश्किल नहीं लगेगी. जैसे ये देखो, ये देखो, यहां आपको बोला गया ड्रॉ रे डायग्राम और स्केल डायग्राम टू लोकेट द इमेज. तो बच्चे पहले आप उससे इमेज डिस्टेंस फाइंड करके फिर स्केल के ऊपर आप उसको क्या करोगे, प्लॉट करके फिर आप इमेजेस बना लोगे. आकृति, आई एम स्टिल बिट कंफ्यूज्ड कि आप क्या बोलना चाहते हो. आकृति, कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू आर सेइंग? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मैं बोल रही थी सर, मुझे डायग्राम वो सर बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर अब क्वेश्चन के साथ रे डायग्राम बना देते तो वो इजी होता फिर. आकृति, यू आर सेइंग कि आपको रे डायग्राम्स बनाने में दिक्कत हो रही है. यस सर. ऑलराइट. देखो बच्चे, जब हम मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो उसमें हम रे डायग्राम की नॉलेज तो यूज कर रहे हैं, पर अभी रे डायग्राम इसके साथ बनाने की तो कोई यूटिलिटी मुझे दिखती ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूं, यहां मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और हमने तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए दो ही पोजीशंस बनाई थी, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो या जस्ट बियॉन्ड द मिरर हो. तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली पेपर पे तो स्केल 20 सेंटीमीटर आप लोगे नहीं, तो आप क्या करो, 20 का हाफ कर लो, 10. ओके. उस हिसाब से इमेज बना के देखो, इस तरीके से ट्राई करके देखो. ऑलराइट. अगर रियल इमेजेस बन रही हैं, रियल इमेजेस बन रही हैं, तो बच्चे उस हिसाब से आपको कॉनकेव मिरर को प्लेस करना पड़ेगा. आकृति देखो, अगर -20 है तो बहुत बड़ा पेपर चाहिए होगा, तब से इमेज बनेगी. तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रेशियो. -20 को 10 ले लूंगा, v की वैल्यू 6 ले लूंगा, उस हिसाब से फोकल लेंथ मार्क करूंगा और रे डायग्राम बना लूंगा. बच्चे कॉन्वेक्स मिरर में तो दो ही पोजीशंस है. अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, अगर जस्ट बियॉन्ड कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा फोकस और पोल के बीच में आएगी. ठीक है. तो देखो यहाँ मेरा फोकल लेंथ कितना निकला है, 30 सेंटीमीटर, और मेरा इमेज डिस्टेंस देखो क्या है, 12 सेंटीमीटर. तो फोकस और पोल के बीच में आ गई ना इमेज. ये तो मैं अपनी रे डायग्राम की नॉलेज यूज करके उसको वैलिड करता हूं, वेरीफाई करता हूं. ठीक है. तो कोशिश करो कि रे डायग्राम्स को बच्चे अलग ही प्रैक्टिस करो. यू शुड बी फर्स्ट क्लियर विद रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स को बनाइए, प्रैक्टिस करिए. ठीक है ना. उसको आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो यू शुड बी क्लियर. और बच्चे, वो जो हमने क्लास जब हमने रे डायग्राम्स डिस्कस किए थे, दैट वीडियो इज लाइंग ऑन द यूट्यूब पे वो वीडियो है चैनल पे. प्लीज उसको एक बार जरूर देखें. ओके सर. ओके. ऑलराइट. अनेशा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर मैग्निफिकेशन से हम कैसे ये समझ आएगी कि ऑब्जेक्ट लार्ज है या डिमिनिश्ड. बच्चे देखो, अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, -1.5, -1.2, +1.3, 1 से वैल्यू ज्यादा है ना, दैट मीन्स इमेज इज लार्जर. इमेज क्या है, बड़ी है. ऑलराइट. पर अगर बच्चे आप ये कह रहे हो, अगर बच्चे आप ये कह रहे हो कि जो इमेज है, इमेज की जो मैग्निफिकेशन है 0.03, 0.04 है, तो दैट मीन्स इट इज डिमिनिश्ड. ठीक है. उसका क्या मतलब होगा, इट इज डिमिनिश्ड. ओके. आई होप दैट इज क्लियर. ओके. और हमने बच्चे क्वेश्चन भेजा है. ओके. इसमें बच्चे लीनियर मैग्निफिकेशन के अलावा दूसरी मैग्निफिकेशन भी यूज हुई है. It is placed beyond center of curvature. Okay. So that means it should be found between focus and center of curvature. Okay. Hello.
ओके अरहाम देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, एक एरो की हम रे डायग्राम नहीं बना रहे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो बच्चे जो आपका mn है, mn और lo, उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कैसे आएगी? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, तो बच्चे ये तो पता है कि मैग्निफिकेशन छोटी होगी, 1 से वैल्यू कम होगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि lo की मैग्निफिकेशन जो है mn से कम होगी या ज्यादा होगी। तो अगर आप इसका रे डायग्राम बना के देखोगे तो mn की जो मैग्निफिकेशन आएगी, ओके ऑलराइट, तो बच्चे इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। LO is less than 1, MN is less than 1, that is correct. LO is less than MN. Okay. अरहाम डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चे, आई जस्ट ड्रॉ दी क्वेश्चन दैट अरहाम हैज सेंड टू मी, ताकि आप इसको देख सको। ओके जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट ड्रॉ दिस क्वेश्चन फॉर यू so you get a idea कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके I'll just use this page itself, यही पेज यूज कर लेते हैं। ओके अरहाम ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है, ऑलराइट। ओके बच्चे, दिस इज माय कॉनकेव मिरर, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम। ये मेरा F है, ये मेरा C है। तो बच्चे हाउ इज योर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है। ओके थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं। ओके ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके दिस इज LMNO। तो बच्चे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं, इसकी मैग्निफिकेशन की मुझे वैल्यूज दी हैं, LO की, मैग्निफिकेशन ऑफ LO एंड मैग्निफिकेशन ऑफ MN, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट MN। मतलब मुझे ये और ये इस साइड की मैग्निफिकेशन देखनी है। तो बच्चे अगर आपका ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड है, तो ये तो मुझे पता है कि छोटी इमेज बनेगी, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, ऑलराइट, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी स्मॉलर। तो बच्चे MN जो है, MN साइड बड़ी है, LO साइड छोटी है। तो बच्चे MN की जो मैग्निफिकेशन होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ MN, इट शुड बी लेस देन 1। ओके लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि छोटी साइड बनेगी। सेम इज द केस विद LO, मैग्निफिकेशन ऑफ LO शुड बी ऑल्सो लेस देन 1, क्योंकि C और F के बीच में इमेज बननी है। तो MN साइड और LO साइड दोनों की मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होनी चाहिए, ऑलराइट। और बच्चे क्योंकि LO साइड MN से छोटी थी, तो मैग्निफिकेशन ऑफ LO शुड बी लेस देन मैग्निफिकेशन ऑफ MN। तो बच्चे ये बी ऑप्शन है। तो बच्चे ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके मैग्निफिकेशन ऑफ MN एंड मैग्निफिकेशन ऑफ LO साइड, इट शुड बी लेस देन 1, क्योंकि C और F के बीच में इमेज बनेगी। और क्योंकि बच्चे MN साइड बड़ी थी, तो ऑब्वियसली जो इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो LO की मैग्निफिकेशन से ज्यादा होगी। तो बच्चे आपके दोनों ऑप्शन बन रहे हैं A एंड B, दिस इज द रीजन उसमें D ऑप्शन दिया है। अरहाम इज दैट क्लियर? ओके Arham, can you share this in the chat box? Just a moment. Okay, just a moment. Okay. Okay, Arham, I have changed the settings. Please share the question in the chat box of Zoom box for everybody. I have changed the settings. Zoom box में इसको chat box में share करो सबके साथ. Share the file if you can. Arham है मीटिंग में कि चला गया है? He is there. Arham, can you hear my voice? Yes, sir, but I am not able to do so. You're not able to share? Yes, अभी भी sir. नहीं? क्या बोल रहे हैं? सर जब मैं फाइल शेयर के ऑप्शन में आ रहा हूँ तो वहाँ पे गूगल ड्राइव दिखा रहा है, बट इट्स इन माय लैपटॉप ओनली। गूगल ड्राइव पे दिखा रहा है, तो बच्चे वो ब्राउज करो फाइल। Not able to browse? Sir, I can't able to do so because सर इसमें गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, नॉट फ्रॉम द लोकल ड्राइव।
Okay, all right. Everybody, I'll just share it in the WhatsApp group. WhatsApp group पे share कर देता हूँ so that you can see the question. Okay, ये option भी तो है मेरे पास. I'll just share it in your group. ये group में share कर देता हूँ मैं आपके साथ. Okay. बच्चे, I have shared this in the chat box of our WhatsApp group. WhatsApp group में मैंने इसे share कर दिया है. एक बार उसको देख लीजिए क्वेश्चन को. ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे ये रिकॉर्ड भी हुई है. सो सी द क्वेश्चन एंड देन गो टू द रिकॉर्डिंग. ऑलराइट, आई विल बच्चे स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद लेंस इन द नेक्स्ट क्लास. बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लेंसेज शुरू करेंगे विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन बेसिक. ओके,